good evening and a very warm welcome. My name is Kriti and today I am all set to give you the overall idea of this chapter, Separation of Substances. You know, in a couple of days we'll have an amazing quiz as well. Complete chapter quiz होने वाला है, तो उससे पहले it's important to revise the entire chapter and cover all the important aspects of this chapter as well. It's a very easy and scoring chapter. So let's quickly interlink all the concepts so that you can retain all the important points for a longer period of time. इसीलिए आपके लिए माइंड मैप लाया जा रहा है यहाँ पे. माइंड मैप एक्चुअली मेक्स अ चैप्टर मीनिंगफुल एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे टू हेल्प यू आउट. आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई हूँ ताकि उस क्विज में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सको. सो विद इन 10 minutes we'll be revising this chapter and in a very productive way. ठीक है, बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर टाइम टेबल एज वेल. सो द स्केड्यूल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू एवरीवन. ग्रेड 6 स्टूडेंट्स रेडी रहना है. कितने बजे? 6 बजे. 6 बजे रेडी रहना है. ठीक है, चलिए. आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है एंड फटाफट से लाइक भी कर देंगे वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. जल्दी से फटाफट से लाइक दिस वीडियो. आई होप सबने लाइक कर दिया एंड सब्सक्राइब भी कर लिया है. बिकॉज हियर वी इंश्योर दैट यू हैव एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? यहाँ पे एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिकली प्लान फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट वंस यू लीव द सेशन, जब भी क्लास ओवर हो, यू हैव ग्रेटर क्लैरिटी एंड क्यूरोसिटी. सो अगर आगे बढ़ना है देन लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. अच्छा चलिए 5 seconds देते हैं आपको. फटाफट से 5 seconds में यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ठीक है, सो 5, 4, 3, 2, 1. आई होप सबने लाइक कर दिया है, सबने सब्सक्राइब कर लिया है एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये जो टर्म है सेपरेशन, इसका मीनिंग पता होना चाहिए. सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, मतलब अलग करना. अब ये क्यों करना है? व्हाट्स द नीड? The need for separation of substances is something we encounter on a daily basis. हम रोज ये कर रहे हैं. क्यों? Maybe to remove some impurities or harmful components. कोई चीज harmful है उसे remove कर रहे हैं, या फिर to separate. We are also separating useful components. So let's say to separate two different but useful components, and also to remove non-useful components as well. हो सकता है वो component हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसे सेपरेट कर रहे हैं. अब ये जो मेथड है जो सेपरेशन का हमें लेना है, दिस मेथड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और एनी मेथड ऑफ सेपरेशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. क्या फैक्टर्स है? पॉइंट नंबर 1, साइज ऑफ कंपोनेंट. क्या साइज है कंपोनेंट्स का, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन सा मेथड हम लेंगे. एंड सेकेंड इज स्टेट ऑफ कंपोनेंट, दैट कुड बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इसके बेसिस पे वी हैव वेरियस मेथड्स. And let's get started with the very first one, that is hand picking. Now what is hand picking? It's the method of separating components from a mixture by hand. हाथ से remove करना, that is what is hand picking. For example, we use this to separate slightly larger sized impurities like stones from rice or pulses. Rice pulses में से stones निकालते हैं हाथ से, बस that is hand picking. But please note that it is not useful when the quantity of impurity is large or the components are not visible. अगर easily visible नहीं है, then how will you do that, right? So this is what is hand picking. Moving on to the next one, that is threshing. Now remember that it is used to separate solid mixtures where the impurities are attached to the desired component. For example, to separate grain from stalks. क्या करते हैं? Stalks are beaten and this freeze the grain seeds. So this is what is threshing. Moving on to the next one, that is winnowing. The separation of heavier and lighter components of a mixture is done using winnowing. कैसे करते हैं? We are basically using wind or blowing air in this. इस process को हम winnowing कहते हैं. For example, let's say this method actually is commonly used by farmers. आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चों ने देखा भी होगा. क्या सेपरेट कर रहे हैं? लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. तो जब भी लाइट और हेवी बात आ जाए तो विनोइंग याद रखना है विंड की हेल्प से. नाउ हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड एंड सीड्स की अगर बात करें दे फॉर्म अ हीप एट अ क्लोजर डिस्टेंस. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज sieving. Now the separation of fine particles from bigger particles
by using a sieve is called sieving. घर पे सबने sieving करा ही होगा, है ना? Sieving allows, let's say for example, fine flour particles, आटा, to pass through the holes, है ना? तो they can pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remain on the sieve. तो ये है sieving. अब देखिए, किसी में हम state यूज कर रहे हैं, किसी में हम size यूज कर रहे हैं. Let's move on to the next one. Sedimentation and decantation. सबसे पहले बात करते हैं sedimentation के बारे में. Now, sedimentation is the process in which the heavier component of a mixture settles after water or any other suitable liquid has been added. तो जब भी आप कोई liquid add करते हो, तो जो heavy particles है वो settle down कर जाते हैं, वो sediment बन जाते हैं, that is sedimentation. And the process of pouring out a liquid from a container without disturbing these sediments, that is called decantation. उसे हम क्या बोलते हैं? Decantation. But some impurities still might get transferred. Sedimentation, decantation के बाद कुछ impurities transfer हो सकती है, and in such cases we always prefer a better method. वो better method क्या है? That better method is filtration. Now it's the process of separating solid impurities from a liquid by passing it through a filtering device. Usually हम filter paper use करते हैं और इस process को हम filtration कहते हैं. Let's say for example ऐसा नहीं कि सिर्फ chemistry lab में filtration हो रहा है. Some people actually filter juices. घर पे juice को filter करते हैं to remove pulp, है ना? So that is also filtration. Finally we have evaporation. Now it's the process of conversion of water into vapor. इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं. वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना जब कुछ हीट दी जा रही है. Now evaporation is used on a large scale to obtain common salt from sea water. सन की हीट आती है तो पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है and the salt is left behind. But remember, there are some mixtures. कुछ mixtures ऐसे भी हैं हमारे पास. कुछ mixtures ऐसे भी हैं that require more than one method of separation as well. तो हो सकता है कि ये जितने सारे मेथड्स हमने डिस्कस करे हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाए. ठीक है, सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो देखना है कि एक मेथड काफी है कि एक से ज्यादा मेथड हमें यूज करना है. एंड फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक नाउ, सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब ये क्या होता है? सी, when no more salt or solute can be dissolved in the given amount of water at a particular temperature, उससे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब कि अब हम मैक्सिमम अमाउंट जो उसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी है, अब हम इसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं. बट when more salt can be dissolved in a given amount of water at a particular temperature, at that point of time the solution is called unsaturated. अगर इसमें अभी और भी ज़्यादा सल्यूट ऐड होने की कैपेसिटी है, more solute can be added, more salt can be added, more sugar can be added, उस टाइम पे वो जो सोल्यूशन है वो क्या है? अनसैचुरेटेड है. तो सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सल्यूट उसमें प्रेजेंट है जो डिसॉल्व हो सकती थी. अनसैचुरेटेड मतलब अभी इसमें और भी ज़्यादा कैपेसिटी है सल्यूट को डिसॉल्व करने की. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, चलिए, तो ये आपका ओवरऑल माइंड मैप है. बहुत ज़रूरी है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझो. हर एक मेथड में क्या डिफरेंस है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, इनकी यूजेस क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. क्योंकि जो क्विज होने वाला है मंडे को, यू हैव टू बी रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बिल्कुल आ गया मंडे. इन अ कपल ऑफ डेज यू विल हैव यू नो देयर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्विज वी आर प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत अलग अलग तरीके के राउंड्स होंगे, बट अच्छे से वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा. सो आई होप अच्छे से आपको समझ आया है. एंड यस बच्चा, वीव गॉट यू कवर्ड. आज माइंड मैप के थ्रू आपको चैप्टर रिवाइज कराया है. नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाए एंड देन यू विल बी थरो विद दिस चैप्टर. सो फटाफट से जिसने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है, क्विकली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन हिट करना मत भूलना. एंड डू लेट मी नो ये जो क्विज सेशन हम ला रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू सुपर एक्साइटेड. तो मुझे एक बार चैट में बता के जाना कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है. आर यू ऑल सेट फॉर द क्विज दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे. कमिंग मंडे आपका क्विज है. देखते हैं कि क्या आप लोग तैयार हो क्विज के लिए या नहीं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सुपर सून. कीप स्माइलिंग. बाय बाय.